Just I am welcoming to the Knowledge Point channel, and I brought today for you students of class 10th syllabus linear equations into variables with word problems based on money matter. It is the part 6 for you. Just you see question number 1. The monthly incomes of A and B are in the ratio 5:4, and their monthly expenditure are in the ratio 7:5. If each saves rupees 3000 per month, find the monthly income of each. As you know, such type of question is asked in the examination, so you must see it clearly. Just I am wanted to give you the solution. First of all, you consider monthly incomes in term of X and monthly expenditure in term of Y. So let monthly incomes of A and B be rupees 5x and rupees 4x, and their monthly expenditure means खर्च, इसे y के टर्म में b 7:5 तो रुपीज़ 7x and rupees 5x. As you know students कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करता है तो सेविंग बचता है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में 5x इनकम में से 7y इन टर्म ऑफ y, तो 5x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना सेविंग करता है 3000. और केस सेकंड है, ये फॉर ए है, केस सेकंड फॉर बी. तो इनके इनकम है 4x और इनके एक्सपेंडिचर 5y, इनके भी सेविंग 3000. नाउ इसी स्टूडेंट्स कोफिशिएंट बराबर करना है, तो कोफिशिएंट y का बराबर करने के लिए हम 1 को 5 से और 2 को 7 से, 5 7 जा 35 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 7. न्यू 2 इक्वेशंस प्राप्त करेंगे. 5 5 जा 25x माइनस 35y 15,000. This is equation third, and equation second by 7 28x minus 35y equal to 21,000. Now subtracting to cancel y term, subtracting equation 4 from equation 3. So 325x minus 35y equal to 15,000, and 28x minus 35y equal to 21,000. Minus plus minus 3x minus 6,000. Here x equal to 6,000 by 3, 2,000. Putting the value of x in equation first. You see 5x
5 into 2000 minus 7y equal to 3000. 10,000 minus 7y equal to 3000. 10,000 ये minus 7y equal to 3000 minus 10,000. तो minus 7y equal to minus 7,000. y equal to 7,000 by 7, 1,000. Monthly income is 5x and 4x. So monthly income of A, that means 5 into 2000. 5 into 2000 rupees 10,000. And monthly income of B is equal to rupees 4x. Rupees 4 into 2000 equal to rupees 8,000. So here students, the first question of this part completed. Students, now question number 2. Each one of A and B has some money. If A gives rupees 30 to B, A अगर 30 rupees B को देता है, then B जो है will have twice money left with A. But if B gives 10 to A, then A will have thrice as much as is left with B. B का बचा हुआ पैसा का 3 गुना हो जाता है A. तो दोनों के पास कितना मनी है स्टार्टिंग इनिशियली आपको बताना है. सो जस्ट आई एम स्टार्टिंग सॉल्यूशन. लेट मनी with A and B in the beginning. B rupees X and rupees Y according to question. Case first. कहता है कि A देता है 30 रुपया, that means X minus 30, और B के पास क्या हो जाता है देने से y plus 30. B जो है will be twice the money left with A. ओके, अब देखिए 2x minus 60 y plus 30. 2x minus y 60 plus 30. 2x minus y 90. Again according to question. अब कहता है कि B 10 to A. B 10 to A. B 10 to A देता है. ठीक है, यहाँ पे A gives 30 to B, then B will have twice. Now B gives 10 to A. 10 to A जो लेफ्ट B के पास है उससे थ्राइस हो जाता है. तो x plus 10 3y minus 30. x minus 3y equal to minus 10 minus 30. x minus 3y minus 40. अब यहाँ क्या है कि ना तो y का कोएफिशिएंट इक्वल ना तो x का, हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 we get, देखिए 2x
माइनस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू माइनस 80। अब है क्या कि ये फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस वाई 90, 2x माइनस 6y माइनस 80, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये 5y 170, y 170 by 5 34. Okay, now this value is put in equation first. Putting the value of y in equation first, 2x minus 34 90, 2x 90 plus 34, x equal to 124 by 2. Hence, money with A rupees 62 and money with B rupees 34. So students, just I have completed question number 2 of this series. Students, just I am coming for question number 3rd. कहता है ए लेडी हैज़ ओनली 25 पैसा कॉइन्स एंड 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स इन हर पर्स। इफ़ सी हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग रुपीज़ 1150 पैसे, हाउ मैनी कॉइन्स इच काइंड डज सी हैज़। फर्स्ट ऑफ ऑल 20 पैसे कॉइन्स का नंबर कितना है, 25 पैसे कॉइन्स का नंबर कितना है मान लिया जाता है। ठीक है, ये टोटल कॉइन्स तो 50 दिया है, तो लेट नंबर ऑफ 20p कॉइन्स बी x एंड नंबर ऑफ 25p कॉइन्स बी y, और 50 कॉइन्स है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y का नंबर 50 है। और उसके पास देखिए टोटल मनी है 11 रुपीज़ 50 पैसे। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें देखिए 20p जो है वो कितना है x है, मतलब 20 और इसको 100 से डिवाइड कर दिए तो ये रुपीज़ हो गया, क्योंकि ये टोटल मनी रुपीज़ में है x, और 25 पैसे वाला कॉइन्स है y, इनको भी रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया तो टोटल मनी 11.50। ये तीनों को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, सिंपलेस्ट फार्मूला ने, इसको 100 से करेंगे तो 20x प्लस इसको 100 से करेंगे 25y, ये 1150, सभी को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए 5 से कॉमन लेकर के 5 कॉमन लिया तो 5 4 जा 4x, 5 5 जा 5y, 1150, ये 4x प्लस 5y 1150 बाई 5, 5 2 जा 10, यानी 4x प्लस 5y, ये 230 हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन है। अब क्या है कि देखना है 5y यहाँ पर y है, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को 5 से, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 सो दैट के कोएफिशिएंट 5y हो जाए। ये पूरे 5x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 55 या 250। अब हम 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3
फ्रॉम इक्वेशन 2 4x + 5y, 4x + 5y जो 230 है और 5x + 5y 250 है, माइनस ये कैंसिल हो गया, -x -20, x = 20। अब इस x का वैल्यू डालने से y का वैल्यू आएगा किसी एक इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x + y 50, 20 + y 50, y 50 - 20, y 30, मतलब 20 पैसे कॉइन्स का नंबर, हेंस नंबर ऑफ 20p coins is equal to 20 number of 25p coins equal to 30. Students, just I have completed the solution of question number 3rd. Students, just you see question number 4. A man sold, एक आदमी बेचता है a chair and a table together for 760 rupees, then making a profit 25% on chair, 10% on table. Again, by selling them together for 767.50, he would have made profit 10% on chair, 25% on table. उलट जाता है परसेंट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि SP होता है 100 + प्रॉफिट परसेंट बाय 100 CP। CP मान लेते हैं XY, लेट CP ऑफ a chair be ₹X and CP of a table ₹Y। तो केस फर्स्ट में जो है क्या है कि X यहाँ पे देखिए 100 प्लस कितना है, चेयर पर प्रॉफिट कितना है 25 बाय 100x प्लस 100 प्लस 10 टेबल पर है तो 760, 125x और बाय 100 110y by 100 equal to 760। यहाँ से 100 हमने LCM लिया, 125x plus 110y 760, तो 125x plus 110y 76000। अब इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर केस 2 देखिए क्या कहता है। केस 2 कहता है कि अगर ये परसेंट जो है रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, मतलब यहाँ 25 के बदले ये आ जाए और इसके बदले ये आ जाए, तो यहाँ पे हमारा 100 + 10 बाय 100x प्लस 100 प्लस 25 बाय 100y, तो हमारा ये आ जाता है 767.50। अब देखते हैं ये 110x बाय 100 प्लस 125y बाय 100 767.50। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल समाप्त हो जाएगा। 110x 125y
इज इक्वल टू ये हो जाएगा 76750। यहाँ देखिए म्यूचुअल एक्सचेंज है कोएफिशिएंट, तो हम इन्हें एक बार प्लस और दूसरे बार माइनस, स्पेशल रूल बताए थे, स्पेशल रूल अप्लाई करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 112 235x प्लस 235y इज इक्वल टू, देखिए ये 750 आएगा और ये 6, ये कितना है 6 6 12 7 7 14 115। चलिए ये 235x ले लिया, सॉरी प्लस y 152750, तो x प्लस y हो गया 152750 बाय 235। अब ज़रा देखिए 5 से ही कट करते हैं, 5 4 जा 5 4 जा 5 7 जा 5 3 जा 15, 0 5 5 जा 2 5 5 जा 0 30550, इसको 47 से करते हैं, 6 से 5 में 2 गया 3, 9 में 8 गया 1 5। ओके, so here only 2 ja, what happening here 5 4 ja 5 7 ja 5 3 ja 15 0 5 5 ja 2 5 5 ja, this one 235 152 here 76 000 76 750 057 15275, yes 15275, and here 235 125 or 110, that is clear. So x plus y you divide it whole, 152750 235, okay, this one 7 0 4 ja 6 ja 6 ja 8 ja, okay 0 7 8 4, and this one 6 5 ja 7 1, so 5 ja, okay 650 650, okay, this is equation 3rd. And now you see x plus y is equal to this, and now subtracting equation 3 from 2 from 1. You see 2 from 1, that means 125, 2 from 1 125, and 10 15x plus no minus 15y is equal to
ओके 750 माइनस 2 from 1 minus 750. So 15 common, x minus y is equal to minus 750. X minus y equal to minus 50. This is 4. Adding 1 and 2. Adding equation 1 and 2. X plus y is equal to 650. X minus y is equal to minus 50. 2x 600. X 300. Okay. Putting the value of x in equation 1. Okay. So we get equation 3. 3x plus y 650. 300 plus y 350. So y equal to 350 minus 300 equal to 50. So that means one chair cost. Therefore one chair cost equal to rupees 300 and one table cost rupees. Okay. Y is equal to 650. Okay, so this one 350. Okay. So students, just I have completed question number 4. Students, question number 5 कहता है on selling a TV at 5% gain and a fridge 10% gain, shopkeeper gains 3,250. But if he sells TV at 10% gain and fridge at 5% loss, he gains rupees 1,500. Find the actual cost price of TV and that of fridge. अब सबसे पहले तो जानना है कि SP के लिए फार्मूला आप जानते ही हैं. SP इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP, और गेन जो है वह SP माइनस CP. ये दो फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे. और हमारे पास सबसे पहले क्या है कि कॉस्ट प्राइस मान लेना है. लेट CP ऑफ ए TV सेट BX and CP of a fridge B rupees Y. According to question, फर्स्ट केस देखिए. गेन कितना हो रहा है टीवी पर 5%, तो 100 प्लस 5 बाय 100 x, और फ्रीज पर 10% 100. ओके 100 प्लस 10 बाय 100 y. तो ये हो गया SP. टोटल SP माइनस टोटल CP इज इक्वल टू 3250. अब x में x माइनस कर देंगे. 105 बाय 100x माइनस x प्लस 110y बाय 100 माइनस y 3250. ये 105 में से 100x, तो 5x बाय 100, और 110 में से 100, तो 10y बाय 100 3250. अब ये है आपका कि 100 LCM लिया, तो 5x प्लस 10y 3250, और 5x प्लस 10y 3250. यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 5 6 जा 5 5 जा. इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली केस 2 देखिए. यहाँ पे 5 से 5 को 10 से एक्सचेंज करेंगे
तो 100 प्लस 10 बाय 100 x प्लस 100 प्लस 5, जस्ट उल्टा हो जा रहा है, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ मिल रहा है इनको, ओहो, हेयर लॉस 100 माइनस लॉस बाय 100 CP, दैट मीन्स ओके 10% gain if he sells 10% gain or loss 5%. Okay, here loss 5%. 5% loss. So what will happen, you see, is equal to 1500. gain तब भी होता है, बट देखिए 110x by 100 minus x, okay, plus 95 by 100 y minus y 15, okay. So here कितना हो जाएगा 10x by 100 और ये हो जाएगा माइनस 5y by 100 1500. आइए और इसे सॉल्व करते हैं. 100 एलसीएम 100 और ये 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 150. 10x माइनस 5y इक्वल टू 15, 1 2 3 4, 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 1 जा इक्वल टू 5 3 जा. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. नाउ यू सी, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू, ओके, दिस इज इक्वेशन थर्ड. अब हमारे पास है एडिंग करने के लिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3. 1 क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 65000 और यहाँ 4x माइनस 2y 60000, ये 5x इक्वल टू 5. सो x 125 बाय 5, 25000 यानी 25,000. वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. x प्लस 2y 25000 प्लस 2y इक्वल टू 65000, 2y 65000 माइनस 25000, y इक्वल टू 0 4 बाई 2, 20,000. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ टीवी, cost of TV equal to rupees 25,000 and cost of fridge rupees 20,000. Okay, so students, just I have completed the question number 5. Students, here question number 6 कहता है, a man invested an amount of 12% per annum simple interest and another amount
at 10% per annum simple interest, he received an annual interest of rupees 1145. But if he had interchanged the amounts invested, he would have received 90 less from this. What amount did he invest at the different rates? As you know, the SI is equal to principal into rate into time by 100. So first you consider amount did he invest. That means let amount invested at 12% per annum be rupees X, and amount invested at rupees 10% be Y. As you know, SI equal to PRT by 100. So here case first. Principal, that means this one, X into rate 12% into time 1 year by 100 plus Y into 10%, case first, 1 by 100. So this amount, that means 1145. 12x plus 10y is equal to 114,500. 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 100 कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल फॉर्म में इसको लाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे सबको। 2 6 जा, 2 5 जा, और 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा, ओके, 225। ये इक्वेशन फर्स्ट। नाउ केस सेकेंड, यू सी इंटरचेंज, रेट इज इंटरचेंजिंग, दैट मीन्स एक्स को 10% पर एनम के साथ प्लस वाई को 12% पर एनम के साथ। तो कहता है कि 90 लेस, मतलब 1145 में 90 लेस, 1055। यहाँ क्या होगा, 10x प्लस 12y 105500। 5 से सबको डिवाइड कीजिए, 2x, सॉरी 2 से डिवाइड कीजिए, 5x 6y इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 5 जा, ओके। अब यहाँ क्या है, 5 6 6 5, म्यूचुअल तो इंटरचेंज्ड है। हम क्या करेंगे, इसको पहले तो इसको 6 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय कितना से, 6 से, एंड इक्वेशन 2 बाय 5। तो 6 6 जा 36x 30y, एंड 6 से इनको मल्टीप्लाई करो, 6 0, ये 3 हो गया। और इनको करना है 5 से, 5 5 जा 25x प्लस 30y, और ये 0, ये आ गया 4।
और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 और 4 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, 36x प्लस 30y 3 4 3 5 00 25x 30y 26 3750। ये कितना हो गया? 6 में 5 1, 3 में 2 1 x इक्वल टू 0 5 7 9 7 और इतना पे ही रह गया। तो x इक्वल टू 79750/11। अब देखिए इसको 11 से डिवाइड करते हैं। सेवन 7250 कितना आ गया? 7250। अब यही वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, 6x यानी 6 इंटू 7250 प्लस 5y इक्वल टू 57,250 प्लस 5y 57,250, 5y इक्वल टू 57250 माइनस 43500 by 5 हेंस x और y का वैल्यू आ गया। तो दैट मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड, हेंस अमाउंट इन्वेस्टेड at 12% per annum ₹7250 and amount invested at 10% per annum ₹2750. So students, just I have completed 6 question series in part 6 and hope you have taken much interested to see. Must watch this video very carefully from start to the end so that you can get advantage. Thanks for watching my video. Hope the well day for you. Thank you.